الذي لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین خصوصاً علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والغیرت عباسیہ والعبادت سجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ سیدنا و مولانا امام الانس والجان مولا صاحب العصر والزمان امام القائم علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل بہ روح الامین وعلی قلبک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ضرور اس طرح پڑھیے کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کچھ سننے پہ آمادہ ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد اذہان علی بیدار ہیں سماعت متوجہ ہیں تو مجھے اجازت ہے میں بات شروع کرنا چاہتا بسم ہوں اللہ سید کچھ لوگ اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا درود اونچی آواز سے پڑھو تو لوگ اس بات سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے درود پڑھنا اظہار مودت ہے آہا واہ واہ اور اظہار ہمیشہ پرجوش ہی اچھا لگتا ہے واہ جی واہ ورنہ اس گھرانے کی سماعت پہ شک نہیں یہ دلوں میں پڑھا ہوا درود بھی سن لیتے ہیں کیونکہ رہتے ہی دلوں میں ہیں آئے ہاں واہ 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 تھک کے نہیں سننا آپ نے جا کے سننا ان کی سماعت کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ معراج کی بلندیوں پہ بھی ہوں تو زمین پہ چلتے ہوئے بلال کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں آئے ہاں واہ 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 بولنا ہے آپ کیا کہنا سید اجازت ہے کہ آج کی گفتگو شروع کریں اب جاننا ہے آپ نے لفظ لفظ آپ کے لیے ہے اور بیداریوں سے بات آگے بڑھنی ہے اسلام کے کچھ ٹھیکیداروں نے آہا جہاں ہم شیعہ علی پہ بسم اللہ کی تشریف ہے ہم مسلم شیعوں پہ ہزارہ اعتراضات کیے ہیں وہی انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی شیعہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں معذرت کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جی رسول کو مانتے تو ہیں لیکن جتنا علی کو مانتے ہیں اتنا نہیں مانتے اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھی شیعہ مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہیں ویسا ماننا چاہیے جیسا ہم نبی کو مانتے ہیں میرے ساتھ ہے نا جی آپ سے بسم اللہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں ہزاروں کتابیں اس مقصد پہ لکھی جا چکی ہیں جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتا میں تینوں اعتراض آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جس کا یہ اعتراض ہے نا کہ جی شیعہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں وہ جاہل ہے اس نے اگر شیعوں کا کلمہ ہی سنا ہوتا آپ نے ساتھ دینا میں کوئی جلدی نہیں ہے یہ میری آخری ڈیوٹی ہے یہاں سے پڑھ کے میں نے گھر جانا ہے آپ کو جلدی ہے تو پھر میں جلدی سمیٹ لیتا ہوں تو اگر سننے کا ارادہ ہے تو آپ نے پھر بولتے آنا ہے میں پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ اگر وہ ہمارا کلمہ سن لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے کلمے میں اللہ کے بعد رسول کی رسالت کا ذکر ہے ان سے بحث ہے
और जो दूसरा तबका है जो कहता है कि रसूल को मानते तो हैं लेकिन अली जितना नहीं मानते, अली को ज्यादा मानते हैं, रसूल को कम मानते हैं। मैं उनसे भी कहूंगा हमारा कलमा देख, अगर अली का नाम रसूल से पहले है, अगर अली का नाम रसूल से पहले है तो हम अली को ज्यादा मानते हैं, और अगर रसूल का नाम अली से पहले है तो फिर फैसला खुद कर। जो कलमे में अली को रसूल से पीछे रखे वो अकीदत में अली को आगे कैसे रख सकता है? वाह 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 वाह। बात रखिए, सलामत रहिए। तीसरा जो तबका है आज की मेरी गुफ्तगू उनके लिए, वो बरादरान इस्लाम को कहते हैं कि शियों को चाहिए जैसे रसूल को हम मानते हैं ये भी रसूल को वैसे ही माने। अच्छा, मैंने जब तहकीक की, मैंने किताबें पढ़ी और उनकी पढ़ी, और उनमें मैंने देखा कि ये रसूल को कैसा मानते हैं, तो फिर दो लोगों के दरमियान खड़ा हूं, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि भी वाकई सच है। वो सही कहते हैं, जैसा रसूल वो मानते हैं वैसा हम नहीं मानते। जागना आखिरी बंदे तक तवज्जो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो घर में भी बैठा सुन रहा है, अगर कोशिश करे तो वो वहीं से भी दुआ करे। जुमला इतना बड़ा है, जैसा रसूल वो मानते हैं वैसा हम नहीं मानते। क्यों? मैंने किताबों में पढ़ा, उनका मोहम्मद गरीब है, हमारा मोहम्मद अमीर है। आपने ही मजलिस को जन्नत बनाना है, वाह वाह वाह। आपने मजलिस का माहौल बनाना है। मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, जागना आपने खुद है। उनका रसूल और हमारा रसूल और वाह वाह। उनका रसूल वो है कि जिसके लिए वो खुद कहते हैं न चांदी थी, न सोना था, न बिस्तर था, न बिछोना, और हमारा मोहम्मद और है। हमारा मोहम्मद वो है, देखिए ये दुनिया वालों का मोहम्मद है जिसे उन्होंने इतना गरीब करके बताया है कि वो इतना गरीब था माज़अल्लाह कि उसके घर में ना बिस्तर था, ना बिछोना था, ना बिस्तर था, ना बिछोना था। हमारा मोहम्मद गरीब नहीं है क्योंकि हमारी गैरत गवारा नहीं करती। हम उस मोहम्मद को गरीब कहें, कायनात का अमीर अली अपने दामन से जिसकी नालैन साफ करे, मैं पहले कहता हूँ बंदे बेशक थोड़े हो, बोलने वाले होने चाहिए। आप सलामत रहे साहब जी, क्या कहने, बहुत अच्छा बोला है। वाह वाह। मेरा जुमला इस शायद कट का था नहीं, जितना बड़ा इस्तेमाल हुआ। वाह वाह। खबरदार हमारे सामने हमारे नबी को गरीब ना कहना। तुम्हारा मोहम्मद और है, हमारा मोहम्मद और है। तुम्हारा मोहम्मद वो है जिसके घर के अपना परनाला भी घर के अंदर चलता था। जानना यार, जिसको बात समझ आई है, अपनी तरफ से तो कर ही नहीं रहा। ये वो बातें हैं जो दुनिया सारी जानती है, शिया भी जानते हैं, सुन्नी भी जानते हैं, जिसका अपना परनाला अपने घर में गिरता था। और हमारा मोहम्मद वो है, अली की अजमत, ज़हरा की इस्मत, हसन का हुस्न, हुसैन की शजाअत, अगर एक पैकर में आ जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा के आपकी हौसला अफजाई के लिए कुछ औरतें नबी के पास, जनाब खदीजा के पास आईं और उन्होंने आगे किबला जुमला कहा। उन्होंने कहा, खवैलत की बेटी, तेरा बाप इतना अमीर है कि उसका शिमला अर्श को छूता है, तू कहाँ आ गई है? उसने शेर सुनाया। जनाब खतीजा ने जवाब दिया, उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बाप इतना बड़ा अमीर है कि उसका शिमला अर्श को छूता है। जिसकी मैं कनीज बन के आई हूँ, इसका जूता अर्श को छूता है। वाह वाह। क्या कहने आपका तो सैयद, अगर आपने जुमला कहा है तो फिर एक जुमला मुझे भी कहने की इजाजत। जिस मोहम्मद को जमाना गरीब कहता है ना, जब ये मोहम्मद दूल्हा बन के खतीजा को बहाने के लिए, खतीजा को लेने के लिए, खतीजा से शादी करने के लिए, खतीजा के दरवाजे पे
ना चांदी थी, हाँ हाँ ना सोना, वाह वाह ना बिस्तर था, ना बिछोना ना बिछौना था। वाह वाह चलो झगड़े की बात नहीं, जिसका जो अकीदा हो। और ये तो मीडिया में आके शेख रशीद साहब ने भी कह दिया किसी को छेड़ो नहीं, वाह वाह अपने अकीदे को छोड़ो नहीं। वाह 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 तो हम उस बात पे अमल करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं, हाँ हाँ मिलके बैठते हैं, फैसला कर लेते हैं। मोहम्मद गरीब निकला तो गरीब, अमीर निकला तो अमीर, मेर वाह वाह झगड़ा करूं। मैं कहूं कि कोई जवान है, उसका घर ऐसा है कि उसमें कोई बर्तन भी नहीं, हाँ हाँ कोई बिस्तर भी नहीं, कोई बिछौना भी नहीं, वाह वाह और घर का परनाला भी बाहर नहीं अंदर चलता है। हाँ हाँ कोई घर ऐसे जवान को बेटी देगा? जाके मुझे बताओ भाई, ना उसके घर में बर्तन, ना कुछ खाने को, गरीब बहुत है, दौलत उसके पास नहीं, गरीब इतना है कि घर में बिस्तर भी नहीं है, परनाला भी अंदर चलता है। कोई घर उसे बेटी देगा? नहीं देगा ना। जमाने वाले फैसला करो, जो आज के दौर में इतना गरीब हो उसे तो एक घर से रिश्ता नहीं मिलता। मोहम्मद अगर गरीब था उसे घर घर से बेटियों के रिश्ते के जुमला कह दिया माशा जी आप सुभान अल्लाह। घर घर से अजीब कायनात का गरीब है। हाँ मैं तुझे बताऊं हमारा रसूल कितना अमीर है। इजाजत भाई दुआ कीजिए दे सुन लेते हैं। मेरा नबी वो अमीर है, अगर कभी हसनैन से मिलने के लिए आंगन तकहीर में आया, जैसे ही आया उसके दाएं कदम पे अली का हाथ, बाएं कदम पे ज़हरा का हाथ आ जाए, उसे मोहम्मद ऐसे अमीर को मोहम्मद कहते हैं। बड़ा गरीब है जिस जमाने वालों का मोहम्मद। बचपन भी गुर्बत में गुजरी, जवानी भी गुर्बत में गुजरी। मारिफत का शादी बड़ा फर्क होता है। जिसके पास मारिफत नहीं थी उसने मोहम्मद की सादगी को गुर्बत समझा। बहुत बड़ा जिसके पास जी जाकर आप, जिसके पास मारिफत नहीं थी उसने मेरे नबी की सादगी को गुर्बत समझा। और जिसको मारिफत थी उसने हबश का तख्त छोड़ के उस पे अपनी जूती रख के उसी मोहम्मद की बेटी की कलीसी में आके सर सजदे में रख के कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मेरा रुतबा बढ़ा दिया। एक जुमला आपने पढ़ा है, एक जुमला अपने पढ़ने लगा। जैसे बीबी खदीजा से किसी ने कहा था ना कि ये फैसला तूने कैसे किया, वैसे किसी ने फिजा से भी सवाल किया था। वो सवाल करने वाला छोटी मारिफत का बंदा लफ्ज लफ्ज पे बोलता है खुदा की। उसने फिजा से सवाल किया, उसने कहा फिजा ये तूने कैसा फैसला किया? तू हबश की मक्का थी, तू तख्त पे बैठी थी, तेरा वहां हुक्म चलता था, तूने तख्त छोड़ा, बादशाहत छोड़ी, इस घर की कनीजी इख्तियार कर ली, वहां तेरा हुक्म चलता था, यहाँ तू चक्कियां चलाती है, वहां तेरे हुक्म पे नौकर थे, यहाँ तू कभी झाड़ू लगाती है, कभी बर्तन मांजती है। फिजा के चेहरे पे जलाल आया, फिजा ने कहा तेरी मारिफत पे लानत हो। फिजा ने कहा तेरी मारिफत पे लानत हो, और तुझे पता ही नहीं मुझ पे अल्लाह ने एहसान क्या किया है, मुझ पे अल्लाह ने करम क्या किया है, मेरा रुतबा अल्लाह ने बढ़ाया कितना है। उसने कहा फिजा क्या दलील है कि तेरा रुतबा बढ़ गया है, तेरी मंजिलत बढ़ गई है? जो शिया है उसका तो हाथ उठना चाहिए, बाकी किसी की जमानत नहीं है। जिसने दिल से हुसैन और हुसैन के घर को माना है, जुमला उसी के लिए है। उसने कहा फिजा बता तेरा रुतबा
कोई नौकरी पसंद आ रही है? वाह वाह हुक्म कभी फरिश्तों को, वाह वाह कभी जिब्रील में, कभी मीकाईल में। हाँ हाँ तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ, आपने देखी उठने वाले उठेंगे, बैठने वाले बैठेंगे। वाह वाह मेहनत मैं कर रहा हूँ, सुनना आपने मुझे। हाँ हाँ अजीब मोहम्मद है बचपन भी, जिन्होंने सीरतुल नबी लिखी है ना उन जाहिलों ने, हाँ हाँ जो नबी को गरीब कहे मेरे निगाह में तो वो जाहिल है। जिन्होंने सीरतुल नबी लिखी उन्होंने लिखा क्योंकि बचपन भी गुर्बत में गुजरा, नौजवानी भी गुर्बत में गुजरी। अगर इरादा हो तो तुम्हें रसूल क्या बचपन की गुर्बत का आलम सुनाओ। वाह 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 मैंने पहले कहा मैं सुनाता जाऊंगा, फैसला आपने करना है, आखिर में जाके आपने फैसला करना है। अगर मोहम्मद गरीब हुआ तो गरीब, अमीर हुआ तो अमीर, फैसला आपका, मैं मुसल्लत नहीं करता। जिन्होंने लिखा कि रसूल का बचपन गुर्बत में गुजरा, अब मैं तुझे एक वाक्य सुनाऊं, शिया सुन्नी किताबों में वाक्य है, बहुत छोटा सन था रसूल का। एक दिन रसूल गुम हो गए। जब सैयदुल बतहा को, रईस मक्का को, अरब पनाह को, वाह वाह अली के बाबा को पता चला कि रसूल नहीं मिल रहे, अपने भाइयों को दौड़ाया, गुलामों को भगाया और अपने नौकरों को मक्के की गली गली में मेरे भतीजे को तलाश करा और खुद भी तलाश करने के लिए निकल गए। मक्के की गली गली देखी, रसूल नहीं मिले। अबू तालिब मक्के से बाहर निकल गए। मक्के के मुजाफात में कुछ कबीले थे जो बैठे हुए थे, तलाश करते करते अबू तालिब भी कबीले में गए तो मंजर क्या देखा, कुर्सी पर रसूल बैठे थे। कुर्सी पे रसूल बैठे। अल्लामा अजहर ज़ैदी कहते थे अगर जुमले में वजन हो तो आवाज में वजन जरूरी नहीं। अगर जुमला जोरदार हो तो आवाज जोरदार नहीं चाहिए, वरना मेरा आवाज उससे बढ़ सकती है। लेकिन मेरी बात बड़ी है जो आप बताने वाली है। रसूल बैठे हैं, सैयदुल सकलैन के हाथ में एक खजूर है, आधी खाई हुई, आधी पकड़ी हुई, और कबीले के लोग जमीन पे बैठ के रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं। जैसे अबू तालिब की निगाह पड़ी, अबू तालिब रसूल के पास आए, अपने भतीजे को उठाया, उठा के चूमा, चूम के सीने से लगाया, वो आधी खजूर पकड़ के वापस की। मैं तुझे बताऊं मोहम्मद का बचपन कितना गरीब गुजरा है। अबू तालिब ने वो आधी खजूर वापस की और कबीले वालों से कहा, कबीले वालों तुमने मेरे भतीजे को, तुमने मेरे सरदार को, तुमने मेरे मोहम्मद को आधी खजूर खिलाई है, आज के बाद 6 महीने तक अपने घरों का चूल्हा ना जलाना, 3 वक्त का खाना मेरे घर आप सैयद है, रिजवान शाह जी सैयद है, और जो मातमी बैठे हुए, ये नहीं कि मैं मातमी की इज्जत नहीं करता, लोगों के दरमियान खड़ा हूं। मैंने अपने उस्ताद से सुना था, उन्होंने कहा बेटा तेरे जैसे 10 लाख खतीब हो, मातमी की जूती नहीं बनती। फैसला आपने करते आना है, लेकिन मैं ये इतनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 10 लाख बच्चे में पढ़ रहा हूं। ये आपकी समाज को सलाम है, ये आपकी मयारे समाज को सलाम है। अल्लाह करे आगे भी आप इसी तरह मेरे साथ चलते जाइए। ये है रसूल के बचपन की गुर्बत। फैसला फिर आपने करना है, मोहम्मद गरीब है तो गरीब, अमीर हुआ तो अमीर। फिर उन्होंने लिखा रसूल की जवानी वो भी गुर्बत में गुजरी। अब अगर इजाजत हो तो रसूल की जवानी की गुर्बत भी सुनाऊंगा आपको। शाह जी कोई बंदा सदका दे, अपना सदका, तो ज्यादा से ज्यादा क्या देता है? कोई काले मां, कोई अंडे, कोई गोश्त, कोई मुर्गी, ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा से ज्यादा सदका दे तो बकरा सदके में देता है। मैं तुझे बताऊं मोहम्मद की जवानी कैसी गुजरी। जिस दिन रसूल दुल्हा बने, मैं आपको वहां कहता हूं, मैं आपको वहां कहता हूं, मुझसे पूछो ना कि मैं आपको दास क्यों दे रहा हूं।
इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने आपको कहा ना कि रसूल दुल्हा बने, तो आप सब समझ गए खदीजा की शादी पड़ने लगा है। बेशक 11 शादियां हैं, लेकिन दुल्हा उसी दिन बना। जीते रहो जी सारे सलामत। यही जन्नत है, इसी का नाम जन्नत है। जब रसूल दूल्हा बन के तैयार हुए, शादी होता है ना हमारे यहाँ भी, दूल्हा जब तैयार होके आता है तो सबसे बार पहले घर वाले उसे देखते और फिर वो उसका सदका उतारते हैं। कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या सदका देता, कोई मुर्गी दे दे, कोई बकरा दे दे, इससे ज्यादा तो नहीं। जिस दिन रसूल दूल्हा बन के तैयार होकर निकले ना, सबसे पहले अबू तालिब ने देखा। बंदे पे दुख होगा जिसके मुंह में जुबान है और वो बोल रहा है। सबसे पहले अबू तालिब ने देखा और देख के कहा, मेरे भतीजे और मेरे मोहम्मद, मैं बचपन से तेरे हुस्न की शिद्दत देखने आती हूँ, मैं बचपन से तेरे हुस्न को बर्दाश्त करने का आती हूँ, लेकिन मोहम्मद जितना हसीन तू आज लग रहा है, अगर इस हुस्न में तू मक्के वालों के सामने चला गया, मक्के वालों ने तेरा ये हुस्न देखा, मर जाएंगे। तेरा हक बनता है तेरा सदका उतारा जाए। मैं तुझे बताऊं मोहम्मद कितना अमीर है, मोहम्मद के सदके जैसा कोई सदका दिखा। तेरा हक बनता है मैं तेरा सदका उतारूं। शादी अब तक मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, अब हर उस बंदे से मिन्नत है जो बात समझता है और मुंह में जुबान रखता है, वो बोलेगा और उसकी आवाज अर्श तक जाएगी। जब कहा ना मैं तेरा सदका उतारूं, रसूल ने कहा चाचा मेरा सदका क्या उतारेगा? अबू तालिब ने आसमान की तरफ देखा और देख के कहा, परवरदिगार गवाह रखना, मेरे जितने बेटे हैं मैंने मोहम्मद पे सदका। क्या कहना है, वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जितने बेटे हैं मैंने मोहम्मद पे सदका कर दिया। वाह वाह, तालिब मोहम्मद पे सदका, अकील मोहम्मद पे सदका, जाफर मोहम्मद पे सदका, अली मोहम्मद पे सदका। अली मोहम्मद पे सदका था ना, तभी तो रात को जब अबू तालिब को रसूल की जान खतरे में नजर आती, मोहम्मद को बिस्तर से उठा के मोहम्मद का सदका ले आगे। जवानी की जरा गरीबी सुनो रसूल। बारातें चलती हैं, एजाज भाई, कोई बड़े से बड़ा बादशाह वो भी दावतनामे देता है। तवज्जो, दावतनामे देता है, पसंद के लोग बुलाता है और बुला के कहता है आपने शादी में शिरकत करनी है। अजीब कायनात में मोहम्मद की शादी है। जिस दिन अबू तालिब ने शादी तय की थी ना, और जब शादी तय होती है, घर का सरबरा सबसे पहले राब्ता करता है अपने करीबी से और उसे कहता है तू तो शादी में आएगा, जो तेरा अजीज हो, जो तुझे प्यारा हो, उसे शादी में ले आना। मैं तुझे बताऊं किस अमीर घर में मोहम्मद पला है। जिस दिन अबू तालिब ने रसूल की शादी खदीजा से तय की, अबू तालिब ने पहला पैगाम उसे दिया, दुआ देने तो भी दुआ भी जो तुझे प्यारा लगे उसे भी ले आना। आवाज कुदरत आई, अबू तालिब तुझे तो पता है मेरा जिस्म नहीं, जागना खुदा करेगा बड़ा है जो कहने लगा। अबू तालिब अगर मैंने घड़ी नहीं देखी, मुझे नहीं पता वक्त क्या हो गया। जब आप इशारा करेंगे मैं छोड़ दूंगा, वरना जब तक आप कहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। जागना, तू तो आएगा, जो तुझे प्यारा लगे ले आना।
आवाज़ खुजरत आई, अबू तालिब तुझे पता है मेरा जिस्म नहीं, अगर मेरा जिस्म होता मैं होता तो हूँ हर जगह पे, मैं शहादत से ज्यादा करीब हूँ, कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं जो वजूद इलाही से खाली हो, लेकिन अबू तालिब जिस तरह तूने मुझे बुलाया है, अगर मेरा जिस्म होता, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं अल्लाह चल के मोहम्मद की शादी अटेंड करने के लिए मदीने आता। मेरा जिस्म नहीं है, मैं तो नहीं आ सकता। हाँ, ये जो तूने कहा कि जो तेरे करीबी हूं उन्हें ले आ, ये 1.25 लाख नबी है, इन्हें भेजूंगा। अबू तालिब ने पूछा, परवरदिगार इन 1.25 लाख नबियों को भेजने का मकसद क्या है? आवाज़ खुजरत आई, शादी है मेरे महबूब की, इन नबियों का आना बनता है। अबू तालिब ने पूछा, कहा इसलिए क्योंकि जिसने दूल्हा बनना है उसी के पसीने से ये नबी बने। शादी के कार्ड पहले छपते फिर बांटे जाते। अल्लाह जाने ये कैसा गरीब है मोहम्मद। ये तय हो गया कि वो आएगा, नबी आएंगे। अच्छा परवरदिगार, अगला काम मुझे अपने भतीजे की शादी के कार्ड छपवाने, बांटने। आवाज़ खुजरत आई, अबू तालिब तू नाम बताता जा, मैं कार्ड लिख के आसमान से भेज देता। आसमानों से भेज देता। अबू तालिब ने कहा, परवरदिगार तू क्यों भेजेगा? शादी मेरे भतीजे की है, कार्ड तू वहां से भेजेगा, ना दावत नामे वहां से लिख के भेजेगा। अल्लाह ने कहा, अबू तालिब बेशक तेरा भतीजा है लेकिन मेरा महबूब है, मैं चाहता हूँ तेरे भतीजे की शादी के दावत नामे वहां से आए जहां से कुरान आना है। अच्छा, मालिक ये दावत नामे बांटने भी हैं, किस नौकर को भेजूं जो मक्के में ये दावत नामे बांटे? आवाज़ खुजरत है, अबू तालिब तू बड़ा रईस है, तेरे अपने नौकर हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं तो मेरे नौकरों में से देख ले, जिब्रील भेजूं, मीकाईल भेजूं जो मोहम्मद के लाठी बन के घर घर चले जाए। शादी का दिन आ गया जी, मैं बात मुख्तसर करूं। कायनात की पहली और आखिरी बारात है जो इस रंग में चली। वाह वाह। अबू तालिब ने सबसे पहले अपने भतीजे के चेहरे पे सेहरा बांधा। वाह 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 वाह। शादी कायनात में पहला सेहरा रसूल को बांधा गया। वाह 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 वाह। क्यों बांधा? मोहम्मद तू दूल्हा बना, तू इतना हसीन लग रहा है, तेरा सदका बेशक मैंने उतार दिया, अभी मुझे डर है किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, तेरा चेहरा छुपाना जरूरी है। वाह वाह। चेहरा छुपाने के लिए अबू तालिब ने पहला सेहरा रसूल को बांधा। वो जो 70,000 बशरियत के नकाब में अपना नूर ना छुपा सका। इस चेहरे की लड़ियां क्या है जो उसका नूर छुपा लेती है। अबू तालिब ने अपने नौकरों से कहा कि मेरा भतीजा दूल्हा बन गया है, सेहरा बांध चुका है, अब भी इतना हसीन लग रहा है, मुझे डर है किसी बदनजरे की नजर ना लग जाए। नौकरों से कहा, एक चादर लो, 2 नौकर आ जाओ, एक चादर इधर से पकड़े, एक चादर इधर से पकड़े, मोहम्मद के आगे तान के चलो। वाह 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 वाह। अंदर से अलम निकाला, अपने भाई अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को अलम दिया। अंदर से लाठी निकाली, अपने भाई अमीर हमजा को लाठी पकड़ा। वाह 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 वाह। अब मंजर ये है कि रसूल की जो बारात जाने लगी है खदीजा के घर की तरफ। वाह वाह। अब्बास के हाथ में अलम, रसूल के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हाथ में अलम, उनके पीछे अमीर हमजा हाथ में लाठी, उसके पीछे है चादर, चादर के पीछे रसूल, रसूल का हाथ अबू तालिब के हाथ में। अगर आप समझते तो आपकी आवाज इससे आगे जाती, ये आपका मजमा अगर समझता तो इससे आगे जाती। हाँ मैं तुझे बताऊं, ये 5 उंगलियां अबू तालिब के हाथ में थी, इसका मतलब क्या है? यही अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल का चचा है, एक दिन रसूल से आके कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने जब पहली दफा आपको देखा था मुझे तब ही पता चल गया था आप कायनात के आखिरी
चांद जाता था, उंगली जाती थी, उधर उधर चांद जाता था। ये है रसूल की एक उंगली की ताकत। वाह वाह और जिसकी एक उंगली जिधर जाए उधर चांद को जाना पड़ता है। अल्लाह जाने अबू तालिब क्या है, उस मोहम्मद की 5 उंगलियां अबू तालिब के हाथ में है, जिधर अबू तालिब जाता है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह जियो, वाह वाह, सलामत। हाँ हाँ, वो जो अमीर हमजा के हाथ में लाठी, उसका भी एक मकसद था। अमीर हमजा से कहा तूने लाठी जमीन पे मार मार के ऐलान करते जाना मोहम्मद की बारात था। वाह वाह, तो उलमा के दरमियान खड़ा हूं, तारीख का मैदान, आप बोलो ना बोलो आपकी मर्जी। जो अमीर हमजा ने ऐलान किया सुनाओ आपको। सबका इरादा है जैसे रसूल की बारात चली अजान है, जैसे पैगंबर की बारात चली, और फैसला खुद करना ये कायनात का कितना अमीर दुल्हा है। जैसे बारात चली, अमीर हमजा ने लाठी जमीन पे मारी और मार के कहा मक्के वाले, सारी कायनात जिसकी जूतियों का सदका खाती है वो दुल्हा बन के रो रहा है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, सलामत माशाल्लाह माशाल्लाह, इरादा हो तो कल बात यहीं से आगे बढ़ती है माशाल्लाह, है जी, सबका इरादा इस बात को कल यहीं से बढ़ती है। वाह वाह, एक लफ्ज है गरीब अरबी में, एक लफ्ज है गरीब उर्दू में। हम जो उर्दू में गरीब कहते हैं इसका मतलब ये है वो बंदा जिसके पास माल ना हो, और अरबी में जिसे गरीब कहते हैं उसका मतलब ये है जिसका कोई ना हो। अब जुमला में कहूँ, मोहम्मद गरीब नहीं, हुसैन गरीब। कोशिश करना दुआ दुआ जाए, सैयदा राजी होके चले जाए। जिसका कोई ना बचे, ऐसा परदेसी, ऐसा परदेसी जिसका परदेश में कोई ना जाए, उसे गरीब कहते हैं। कारी जान मोहम्मद ने यह जुमला पढ़ा था शेखपुरा में, और हमने ये जुमला सुना, तब से याद है। वो कहते थे मुसलमानों, कोई कायनात का गरीब से गरीब भाई भी किसी बहन का मर जाए, बहन ससुराल से जब आती है तो वो आके नहीं कहती ये मेरा भाई गरीब था, वो रो के कहती है मेरा सुल्तान भाई, और मेरा अमीर भाई, और मेरा रईस भाई। मातम बनता हो तो मातम करना, ना बनता हो तो ना करना। मैं किसी की मिन्नत नहीं करने लगा। अगर हक बने तो इस गरीब को रोना जरूर। अल्लाह जाने कितना मारा है मुसलमानों ने हुसैन को 1400 मील तक। अली की बेटियां यही कहती रही, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा गरीब भाई। अजरकुम अल्लाह। आज हुसैन करबला में आ गया। हुसैन ने बेटों की कब्र बनाने के लिए करबला खरीदी। सैयदों से इस जुमले पे गिरिए का एक इल्तमास है, सैयदों का तो हक बनता है इस जुमले पे मातम करें। जब कोई बंदा कोई जागीर खरीदता है तो दुनिया ये तो दुआ करती है अल्लाह करे तुझे राज आ। आज हुसैन ने करबला खरीदी है, दुआ करो हुसैन को राज आ। आज हुसैन करबला में आ गया। आज अब्बास ने करबला में खैमे लगा दिए। जुमला है जिसकी समझ में आ गया वो कब्र तक रोएगा, और जो रोने की नियत ही नहीं करके आया मैं उसे रुला नहीं सकता। आज अब्बास ने जो दरूद पढ़ के खैमे लगाए थे वो 10 मुहर्रम को मुसलमानों ने नमाज पढ़ के चला दिए। मक्तल कहती है आज गाजी खैमे भी लगा रहा था, रो भी रहे थे। रोते हुए अब्बास को हुसैन ने देख के कहा गाजी रोता क्यों है? अब्बास रो के कहता है बोला ये दश्त देख, ये जंगल देख, ये अली की बेटियों के लायक तो नहीं है। अब्बास खैमे लगाता रहा, हुसैन अब्बास का हाथ चूमता रहा। आज के दिन रवानगी पढ़ी जाती है मदीने से।
मैं सारी नहीं पढ़ूंगा, चंद लम्हात के लिए कोशिश करना, थकना नहीं। याद रखो, जहां मजलिस होती है कोई आए ना आए, बकिया से एक खुश्क रुमाल जरूर आता है। सैयद महदी बहरुल अलूम एक बहुत बड़े आलम गुजरे तुम्हारे मजहब के। एक दिन उन्होंने ख्वाब में हुसैन को देखा, हुसैन जख्मी ही जख्मी। सैयद महदी जब उठा तो बड़ा रोया, सारा दिन रोता रहा और ये कहता रहा, मौला मैं तेरा इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा खतीब, मैं मिंबरों पे जाके तेरे जख्म बताता था मौला, लेकिन जितना जख्मी मैंने तुझे आज देखा मुझे तो पता ही नहीं था तू इतना जख्मी है। अज़ादारो सारा दिन रोता रहा, रात को रोता रहा, रोते रोते आंख लग गई। दोबारा हुसैन को देखा, हुसैन के सारे जख्म ठीक थे, सिर्फ सीने पे 2 जख्म थे, एक दाएं एक बाएं, एक दाएं एक बाएं। जिसे समझ आए वो मातम जरूर करे। वो कहता है मैं करीब गया, मैंने जाके कहा मौला कल इतना जख्मी था, अब तेरे जिस्म पे जख्म ही कोई नहीं सिवाय इन 2 जख्मों के। मौला ने कहा सैयद महदी कल जो तू रोता रहा है ना, मेरी माँ ज़हरा तेरे आंसू रुमाल में लेके आती थी, वो लाके मेरे जख्मों पे लगाती रही, मेरे रोने वालों के आंसुओं से मेरे जख्म भर गए। उसने कहा मौला अगर बाकी जख्म ठीक हो गए तो ये 2 जख्म कौन से हैं जो ठीक ना हो सके? हुसैन ने रोके कहा सैयद महदी ये ऐसे जख्म हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। तो मौला बता तो सही ये जख्म कौन से हैं? मौला ने कहा ये दायां जख्म अब्बास की जवानी का है, ये बायां जख्म अकबर की बच्ची का। बकिया से खुश्क रुमाल आया है, 2 आंसू जरूर आने चाहिए। जो मुहर्रम में भी ना रो सके उसे ज़हरा से माफी मांगनी चाहिए। बहन से कहने लगा मुझे दरबार बुलाया, तड़प के अली की बेटी करीब आई, आके कहा भैया फिर बताना क्या कहा? कहा ज़ैनब मैं दरबार जा रहा हूं, मुझे दरबार में बुलाया गया। अली की बेटी के रंग जर्द हो गए और करीब आके कहती है भैया दरबार में न जाना। हुसैन ने रोक के कहा ज़ैनब मुझे रोकना नहीं, मुझे दरबार बुलाया गया है, मैं जाऊंगा। अली की बेटी रो के कहती है भैया तू अगर दरबार में चला गया, तू मारा गया, तुझे पता है मैं कौन ज़ैनब हूं? मेरा पापा मरा नहीं था, मारा गया था। मेरी माँ मरी नहीं थी, मारी गई थी। मेरा भाई हसन जवानी में मरा नहीं था, मारा गया था। मुझसे पूछना जिसके इतने मारे गए वो ज़ैनब जिंदा कैसे रही? हुसैन ने कहा ज़ैनब बता तू जिंदा कैसे रही? ज़ैनब रो के कहती है भैया जब मेरी माँ मारी गई मैं बड़ा रोई, लेकिन मैंने देखा वही माँ वाली खुशबू तुझसे आती थी। मेरा बाबा मारा गया मैं बड़ी बड़ी, फिर मैंने देखा बाबा वाली खुशबू तुझसे आती है। मेरा हसन मारा गया मैं बड़ा रोई, फिर मैंने देखा हसन वाली खुशबू तुझसे आती है। अगर तू मारा गया तो फिर मैं मान लूंगी मेरी माँ भी मारी गई, मेरा बाबा भी मारा गया, मेरे भाई भी मारे गए। हुसैन तुझे कुछ हो जाए ज़ैनब का बचता कुछ नहीं। हुसैन ने रोके कहा ज़ैनब घबरा नहीं, मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ, जानता हूँ मदीना मेरा मकतल नहीं, वलीद मेरा कातिल नहीं, मुझे दरबार में कोई मारेगा नहीं, मुझे जाने दे। जो मातमी है वो मातम जरूर करे, जब कहा ना मुझे जाने दे, मुझे मारा नहीं जाएगा। अली की बेटी रो के कहती है हुसैन ये वही दरबार है जिसमें मेरी माँ गई थी, मारी तो वो भी नहीं गई थी, लेकिन इस दरबार में हालत ये की जब मेरी माँ दरबार में गई थी बाल काले थे, जब वापिस आई थी बाल सफेद। अजरकुम अल्लाह दामन में हाथ डाल लिया। अली की बेटी ने रो के कहा जाने नहीं दूंगी। हुसैन ने कहा ज़ैनब जाने दे। अली की बेटी मिन्नतें करने लगी। सामने अब्बास के कमरे का दरवाजा था, आलिया उस दरवाजे को देखने लगी। हुसैन बहन का चेहरा देख देख के कह रहे हैं ज़ैनब जाने दे, आलिया जाने दे। अली की बेटी रो के उसी दरवाजे की तरफ देख रही है, रोए जा रही है, देखे जा रही है। उधर नबाबा खातून अब्बास की जोजा दौड़ती हुई अब्बास के कमरे में आई। उसने जाते ही सर से चादर उतारी, जमीन पे बैठ गई। अब्बास सीने में फजल को खिला रहा था।
अब्बास की निगाह पड़ी, अब्बास ने देख के कहा अली के घर में अली की बहू इस तरह नहीं बैठती। उसे कहा जो रंग मैं देख आई हूँ मुझे यकीन हो गया अली का घर बचने वाला नहीं है, अली का घर उतरने वाला है। कहा तुमने देखा क्या? कहा मैंने देखा है दरवाजे पे बहन ने भाई को पकड़ा है, भाई कहीं जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। जा अब्बास जल्दी कर देख मंजर क्या है। जब ये कहा अब्बास ने फजल उतारा नहीं, फजल को फेंका, ना अमामा सर पे ना नालैन पैरों में, दौड़ता हुआ अब्बास बाहर निकला। उधर अली की बेटी अब्बास के दामन में हाथ है, रो रो के उसी दरवाजे की तरफ देख रही है। हुसैन कहते हैं ज़ैनब जाने दे, ज़ैनब कहती नहीं जाने दूंगी। जैसे ही दरवाजे से अब्बास निकला, अली की बेटी ने अब्बास को देखा, दामन छोड़ के कहती है जा चला जा अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा क्यों छोड़ा, अब क्यों चला जाओ? अली की बेटी रो के कहती मेरी चादर का मुहाफिज, तेरी जिंदगी का सामान, तेरी जिंदगी का मुहाफिज, मेरी मां अम्मा बनीन का लाल आ गया। अब्बास अली का अली बेटा आ गया। अब्बास गरीब है। अली की बेटी ने कहा अब्बास ख्याल रखना मेरा भाई दरबार में तन्हा न है। अब्बास पत्थर पे हाथ रख के कहता मौला दरबार जाना है? कहा हाँ अब्बास। अब्बास ने कहा मौला तलवार ले लूं? जो रोने आया है जुमला उसके लिए कहने लगा मौला अब्बास कहते मौला तलवार ले लूं? हुसैन ने कहा नहीं अब्बास लड़ना नहीं। जब कहा ना लड़ना नहीं, अब्बास हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहते मौला इस मदीने में कूफे में तेरा बाबा कत्ल हो गया, मुझसे कहा लड़ना नहीं। तेरे भाई हसन के जनाजे पे तीर चल गए, मुझसे कहा लड़ना नहीं। आज तुझे दरबार में लाया है, तू मुझसे कहता लड़ना नहीं। बोला जरा बता तो सही मुझे लड़ना कब? अजर जरूर जाएगा अब्बास? हाँ मौला आलिया का हुक्म है, अधूरी नहीं हो सकती। जो रोने आया है जुमला उसके लिए। हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास फिर एक आवाज दे, जो तेरी आवाज पे आ गया उसे ले ले, जो ना आए उसे रहने दे। अब देख रहा हूं मेरी तरफ। अब्बास ने सहन तकहीर में खड़े होके एक आवाज दे के कहा मुस्लिम, सज्जाद, अली अकबर, कासिम और मोहम्मद सैयद होगा मातम बेगम आतम जरूर कहो। जैसे ही जिसका अब्बास ने नाम लिया, जब कहा ना मुस्लिम अपने कमरे से निकला, हाथ में तलवार थी। जब कहा ना सज्जाद अपने कमरे से निकला, हाथ में तलवार थी। जब कहा अली अकबर अपने कमरे से निकला, हाथ में तलवार थी। जब कहा कासिम अपने कमरे से निकला, हाथ में तलवार थी। हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका, अपना दामन चाक दिया। हुसैन मुंह में मातम करने लगा। अब पे गिर के कहता है मौला मातम क्यों कर रहा है, दामन क्यों चाक किया, अमामा क्यों उतारा? हुसैन ने कहा बात तुझे पता है मैं ईमान हूँ, मैं आने वाला वक्त भी देखता हूँ, गुजरा हुआ वक्त भी देख रहा हूँ। मैंने देखा तेरी एक आवाज पे मुस्लिम भी आ गया, सज्जाद भी आ गया, अकबर भी आ गया, कासिम भी आ गया, और भी आ गया, मोहम्मद भी आ गया। मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैं सजदे में होऊंगा, बेगारत मुझे जुल्फों से पकड़ेगा, कभी इधर तमाचा मारेगा, कभी इधर तमाचा मारेगा। मैं आवाज़ें देके कहूंगा ओ गाजी आ जा, हुसैन आ जा, ओ अकबर आ जा, और देख मेरी सकीनों के साथ अल्लाह